آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں۔ آج ہے 22 فروری 2026 اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ریزورٹ میں بڑی گھسپیٹ، مارا گیا ہتھیار لے کر گھسا شخص۔ ماسکو پر ڈرون حملے کا سایہ، روس کے 4 ایئرپورٹس پر اڑانیں ٹھپ۔ آیت اللہ خامنئی کا ایمرجنسی پلان، قتل کی صورت میں کمان دی اپنے سب سے خاص کے ہاتھ۔ ایران ٹالنا چاہ رہا جنگ، بات چیت کے لیے پھر کر سکتا ہے امریکن ڈیلیگیشن سے ملاقات۔ حماس کو جلد ملنے جا رہا نیا چیف، ایران کے قریبی یا قطر ترکی کے دوست میں سے آخر کسے ملے گی کرسی؟ اور غزہ میں ملبوں پر ہو رہا افطار، یہ تصویر ہمت اور تکلیف دونوں کی ہے کہانی۔ ان ہیڈ لائنز کے علاوہ بھی کئی اہم خبریں آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عادل خان آزاد اور یہ ہے اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیل سے خبروں کا یہ سلسلہ۔ سب سے پہلے ایک بڑی خبر کا رخ کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پراپرٹی یعنی ان کے ریزورٹ مارے لاگو میں ہتھیار لے کر ایک شخص گھسا تھا اور وہ مار گرایا گیا۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے مار اے لاگو اسٹیٹ کی سیکیورٹی توڑنے کی کوشش کرنے والے ایک ہتھیار بند شخص کو یو ایس سیکریٹری سروس ایجنٹس نے گولی مار کر ختم کر دیا۔ کئی جگہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پیٹرول بم لے کر گھسا تھا، کئی جگہ کچھ اور ہتھیار بتایا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب ٹرمپ خود واشنگٹن میں موجود تھے۔ رپورٹ کے مطابق آج آدھی رات کے قریب 1:30 بجے ایجنٹس نے اس شخص کو اسٹیٹ کے سیکیور علاقے میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ امریکی سیکریٹ سروس کے اسپوکس مین نے بتایا کہ جیسے ہی خطرہ محسوس ہوا، ایجنٹس نے فوراً ایکشن لیا اور فائرنگ کی، جس میں وہ شخص مارا گیا۔ ابھی تک اس شخص کی پہچان اور اس کے مقصد پر پوری طرح تصویر صاف نہیں ہوئی ہے، لیکن شروعاتی جانکاری یہ اشارہ کر رہی ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیاں اس بے حد سنگین بریچ کو اب بڑی پینی نظر سے دیکھ رہی ہیں کہ آخر کار امریکہ کے صدر کی پرسنل پراپرٹی میں، جہاں پر آلریڈی ٹائٹ سیکیورٹی ہے کیونکہ ٹرمپ کافی لوگوں سے یہیں ملتے ہیں، ابھی نیتن یاہو سے بھی یہیں ملے تھے، وہاں یہ بریچ کیسے ہو گیا، وہاں یہ گھسپیٹ کیسے ہو گئی، یہ بہت ہی باریکی سے اب دیکھا پرکھا جا رہا ہے۔ یہ انسیڈنٹ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ میں ہائی پروفائل لیڈرز کی سیکیورٹی کو لے کر پہلے ہی بحث تیز ہے اور ٹرمپ پر بھی ایک جان لیوا حملہ کیمپین کے دوران ہو چکا ہے۔ سوال اب یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ اکیلے شخص کی حرکت تھی یا اس کے پیچھے کوئی بڑا پلان چھپا ہوا ہے؟ روس کی دارالحکومت ماسکو پر ایک بار پھر سے ڈرون حملوں کا سایہ منڈرا رہا ہے۔ سنیچر اور اتوار کی درمیانی رات سے جاری ان حملوں کی وجہ سے ماسکو کے 4 بڑے ایئرپورٹس پر اڑانیں روک دی گئی ہیں اور سخت پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ یہ فی الحال جاری ہے۔ روس کی ایویشن ریگولیٹر نے تصدیق کی ہے کہ سیکیورٹی کے پیش نظر یہ قدم اٹھانا پڑا۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانین کے مطابق روسی ایئر ڈیفنس سسٹم نے ماسکو کی جانب بڑھ رہے کم سے کم 11 ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ حالانکہ میئر نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں ابھی تک کسی جانی یا بڑے مالی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ حملے صرف ماسکو تک محدود نہیں رہے دوستو۔ روسی وزارت دفاع یعنی منسٹری آف ڈیفنس کے مطابق پچھلے 2 گھنٹوں میں روسی علاقوں میں کل 71 یوکرینی ڈرونز مار کر گرائے گئے ہیں۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب اس جنگ کو شروع ہوئے 4 سال پورے ہونے والے ہیں۔ دوستو، یوکرین لگاتار روس کے اندرونی حصوں میں تیل ڈپو پر اور فوجی ٹھکانوں کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے تاکہ روس کی جنگی طاقت کو کمزور کیا جا سکے۔ ایسا نہیں کہ روس حملے نہیں کر رہا۔ اتوار کی صبح یوکرین کی کیپٹل کیو میں زبردست دھماکے ہوئے۔ افسروں نے آگاہ کیا کہ یہ حملہ میزائل کے ذریعے کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ روس کی لڑائی کے 4 سال پورے ہونے سے صرف 2 دن پہلے ہوا ہے۔ پورے شہر میں ڈر کا ماحول ہے اور لوگوں کو ہوشیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے سائے کے بیچ ایران سے ایک بے حد سنسنی خیز اور بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ دی نیو یارک ٹائمز اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے اپنی موت یا اپنے قتل کی صورت میں حکومت اور فوج کو چلانے کے لیے ایک بڑا ایمرجنسی پلان تیار کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق خامنئی نے اپنے قریبیوں کو صاف بتا دیا ہے کہ اگر امریکی یا اسرائیلی اسٹرائک میں ان کی جان جاتی ہے تو کسے اور کس طرح سے ملک کی کمان سنبھالنی ہے۔ اس پلان کے تحت چین آف کمانڈ کے کئی لیول طے کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی صورت میں حکومت اور ملک ٹھپ نہ ہو۔ کوئی نہ کوئی لیڈر تو ہو جو ملک کو سنبھال سکے۔ افراتفری کا ماحول نہیں بننا چاہیے، کیونکہ خامنئی اور ان کے بیٹے کو قتل کرنے کی بات بار بار سامنے آ رہی ہے امریکی رپورٹ سے۔ علی لاریجانی کرائسس مینیجر بن گئے ہیں۔ فی الحال خبر یہ ہے، اس پورے معاملے میں سب سے چونکانے والا نام علی لاریجانی کا ہی ہے۔
रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह खामनेई ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के साबिक कमांडर अली लारिजानी को हुकूमत के सेंट्रल रोल में बैठा दिया है। लारिजानी इस वक्त न सिर्फ ईरान के अंदरूनी हालात और प्रोटेस्ट को देख रहे हैं, बल्कि अमेरिका के साथ जारी बेहद नाजुक एटमी डिप्लोमेसी की कमान भी उन्हीं के हाथों में है। लारिजानी रूस, कतर और ओमान जैसे मुल्कों के साथ तालमेल बिठा रहे हैं और मुमकिना जंग की तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि अली लारिजानी को खामनेई का सबसे भरोसेमंद मैनेजर माना जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो अगले सुप्रीम लीडर नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए एक सीनियर शिया रहनुमा या मजहबी रहनुमा यानी क्लेरिक होना ज़रूरी है। लारिजानी का काम मुश्किल वक्त में हुकूमत और फौज के बीच तालमेल बैठाना और फैसला लेना होगा। खामनेई ने अपने सक्सेसर्स यानी जानशीनों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है, ताकि अगर आपसी कम्युनिकेशन टूट भी जाए या कोई बड़ा हमला हो तो भी ईरान की मशीनरी चलती रहे। ये ना हो कि उनके तो ज़िंदा या मरने की खबर नहीं है, लारिजानी या XYZ किसी के भी, तो हम कमांड किससे लें? अगर उनसे राब्ता नहीं हो रहा है तो इससे कमांड लो, इससे राब्ता नहीं हो रहा है तो उससे ऑर्डर लो। एक पूरा सिस्टम बना दिया गया है, एक पूरी हिरार्की है। दोस्तों, अगर इस रिपोर्ट को सही माना जाए, क्योंकि मैं हर रिपोर्ट पर शुबा जो है मुझे रहता है, अगर इस रिपोर्ट को सही माना जाए तो ईरान के सुप्रीम लीडर का अपनी मौत के बाद का प्लान तैयार करना ये बताता है कि ईरान इस वक्त खतरे को कितना करीब महसूस कर रहा है। ट्रंप हुकूमत के बढ़ते दबाव और इसराइल की धमकियों ने ईरान को अपनी सलामती के लिए इस तरह के सख्त और एहतियाती कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि जहाँ तक मेरा इल्म है, ये एक सिस्टम होता है हर मुल्क में, और ईरान में भी ये सिस्टम पहले से है। एक और बड़ी खबर सुनिए सर, ईरान जंग टालना चाहता है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची इस हफ्ते जेनेवा में अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ से फिर मिल सकते हैं। उन्होंने कहा है, अराक्ची ने, कि एटमी प्रोग्राम के मसले को बातचीत के जरिए हल करने का अभी भी एक अच्छा मौका है। यानी ईरान कह रहा है कि भैया टेबल पर ही बात सुलझा लो, काहे मैदान जंग में आ रहे हो, ऐसा मत सोच के आना, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, सबका होगा। अब्बास अराक्ची ने ये बात CBS न्यूज़ को एक इंटरव्यू देते वक्त कही, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले के बारे में सोच रहे हैं। इस तरह की कई खबरें जो हैं वो तैर रही हैं। खबरों के मुताबिक अगर ईरान अगले 48 घंटों में कोई ठोस प्लान देता है तो जुमे के दिन एक और दौर की मीटिंग हो सकती है, जंग टल सकती है। बढ़ते हैं आगे। गजा से एक बार फिर ऐसी रूह कपा देने वाली तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर किसी का भी दिल भर जाए। हालांकि इस तस्वीर में आप हौसला भी तलाश कर सकते हैं। पैलेस्टाइन हाईलाइट के X हैंडल के जरिए शेयर की गए इस वीडियो में एक फ़लस्तीनी फैमिली अपने तबाह हो चुके घर के मलबे पर बैठकर इफ्तार कर रही है और बैकग्राउंड में मगरिब की अजान गूंज रही है। जहां छत होनी चाहिए थी वहां सिर्फ खुला आसमान है, और जहां दीवारों का साया होना चाहिए था वहां सिर्फ कंक्रीट के ढेर और सरिये नजर आ रहे हैं। इस सब के बावजूद ये पूरी फैमिली, जिसमें औरत बच्चे सब शामिल हैं, ये फैमिली अपनी ज़मीन और अपनी अकीदत को छोड़ने को तैयार नहीं। मलबे के बीच बिछा हुआ वो मामूली सा दस्तरखान और उस पर रखे चंद निवाले पूरी दुनिया की सोई हुई इंसानियत को झकझोर दे रहे हैं। ये तस्वीर चीख कर कह रही है कि गजा के लोग सिर्फ हमले नहीं झेल रहे, बल्कि वो हर रोज़ अपनी इज्जत और वजूद को बचाने की जद्दोजहद भी कर रहे हैं। जिस घर में कभी खुशियाँ गूंजती होंगी, आज वहाँ खामोशी और बर्बादी के मंजर हैं। लेकिन इफ्तार का ये मंजर बताता है कि फ़लस्तीनियों के हौसले आज भी बुलंद हैं। मैं हमले की जब भी बात करूं तो आप कनेक्ट कर लीजिएगा कि सीज़ फायर के बावजूद हर रोज़ गजा पर हमले हो रहे हैं, हर रोज़ लोग ज़ख्मी भी हो रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं। बढ़ते आगे, एक और अहम खबर है। फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। हमास के एक आला अहलकार ने ये बताया है कि हमास जो उनकी तंजीम है वो अपने नए सरबराह, नए चीफ को चुनने के आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है। इस रेस में दो बड़े नाम सबसे आगे चल रहे हैं। हमास ने हाल ही में अपनी नई शूरा काउंसिल की फॉर्मेशन मुकम्मल की है। इसमें ज़्यादातर मजहबी स्कॉलर्स शामिल होते हैं। इसके साथ ही एक नया पॉलिटिकल ब्यूरो भी बनाया गया है हमास का। गजा की जंग के दौरान इसराइल ने हमास की टॉप लीडरशिप के कई बड़े चेहरों को निशाना बनाया था, जिसके बाद ये इंतखाबात, ये इलेक्शंस तंजीम के वजूद के लिए एक बेहद अहम इलेक्शन माने जा रहे हैं। हमास के नए चीफ के लिए दो बड़े नामों के बीच
ज़बरदस्त मुकाबला है। पहला है खालिद मशाल। ये हमास के पुराने और मंझे हुए लीडर हैं जो 2004 से 2017 तक पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ ऑलरेडी रह चुके हैं। इन्हें कतर और तुर्की का करीबी माना जाता है और ये तंजीम के बाहरी यानी डायस्पोरा मामलों को देखते रहे हैं। खलील अलैया दूसरा बड़ा नाम है। ये गज़ा से ताल्लुक़ रखते हैं और सीज़ फायर की बातचीत में हमास के चीफ निगोशिएटर रहे हैं। सारा मोल भाव यही करते हैं। इन्हें ईरान का करीबी और हमास के जंगी विंग अल क़स्साम ब्रिगेड का हिमायती माना जाता है। दोस्तों, हमास के नए चीफ का इंतखाब या चुनाव सिर्फ एक तंजीम का अंदरूनी मामला नहीं है, बल्कि इससे गज़ा के मुस्तकबिल की डायरेक्शन भी तय होगी। अगर मशाल चुने जाते हैं तो शायद बातचीत और सफारती रास्तों पर ज़्यादा जोर रहे। अगर खलील अलहैया बाजी मारते हैं तो हमास का रुख और भी सख्त और ईरान की जानिब झुका हुआ रह सकता है। एक खबर यह है कि ईरान से मुमकिना जंग के ख़तरों के बीच लगातार IDF ने हिज़्बुल्लाह के ऊपर हमले तेज़ कर दिए। हमने कल भी बताया था और आज भी ये हेडलाइन बन रही है और बाकायदा इस पर जो है वो इनसाइड स्टोरी नाम से इसराइली अखबारों में खबर छप रही है कि हिज़्बुल्लाह की मिसाइल कैपेबिलिटी को और पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहती है IDF, ताकि अगर ईरान से कोई जंग छिड़ती भी है तो हिज़्बुल्लाह उसके एक पैसे की भी मदद न कर सके। इसके अलावा इसराइली अखबार दूसरा लिखता है वीकेंड बट विलफुल, कि हिज़्बुल्लाह कमज़ोर हो गया है लेकिन दृढ़ है। वो फैसला ले सकता है कि इसराइल के ख़िलाफ़ फिर जो है वो जंग लड़े, लेकिन इस फैसले में उसे नुकसान होगा, ये भी द जेरूसलम पोस्ट कह रहा है। अफ़गानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स हुई हैं और अफ़गानिस्तान ने अब कहा है कि हम जो है बहुत ही माकूल जवाब अब पाकिस्तान को देंगे। ये बताया गया है कि अफ़गानी इलाकों में इन एयर स्ट्राइक से 17 लोग मारे गए हैं, जबकि 6 लोग अब भी ज़ख्मी हैं, लापता हैं। और ये एक अटैक जो है वो एक स्कूल में हुआ और घरों पर हुआ। ये पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने तालिबान के कैंप्स को निशाना बनाया, जबकि अफ़गानिस्तान का कहना है कि हमारे आम शहरी मारे गए हैं। उधर सूडान ने ये दावा किया है, सूडान के RSF ने दावा किया है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने, कि उन्होंने चाड बॉर्डर, जो चाड मुल्क है अफ्रीकी, उसके बॉर्डर के करीब एक कस्बे पर वापस कब्ज़ा जमा लिया है और सूडान की जो आर्मी है उससे वहाँ से कंट्रोल वापस ले लिया या उन्हें हरा दिया है, खदेड़ दिया है और इस इलाके पर अब सूडान के RSF का कंट्रोल हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा एक नया चैनल बन गया है ख़बरों से अलहदा, आदिल खान आज़ाद ऑफिशियल। तो उसका जो लिंक है और उसका पहला वीलॉग जो है वो आपको लिंक मिल जाएगा हमारी पोस्ट में, इसी चैनल के आज़ाद बोल इंडिया के। हमने एक छोटा सा ट्रेलर उसका कुछ घंटे पहले जारी किया था, 2.5 मिनट का। लोग समझे वही वीलॉग है, तो लोग बड़ी दुआएं देने लगे और असली वीलॉग कोई जा नहीं रहा था, तो हमने उसका लिंक पोस्ट में डाल दिया। भैया 2.5 मिनट का वीलॉग नहीं होता। टाइटल में लिखा हुआ है पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ जाएं, कोई देखते ही नहीं। ऐसी भी क्या मोहब्बत है कि कुछ दिखाई ना दे। जाइए, वो चैनल आपका है और आपके ज़रिए ही उसे आगे बढ़ना है। सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, वहाँ काम पसंद आए। लंबा वीलॉग है, 37-40 मिनट का है। देखिए, जामा मस्जिद दिल्ली का, आपको बहुत से लोगों से मैंने बात की, आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।